Hello everyone, welcome to my channel Short Chit Shakti. And today we have with us Kumaran. Kumaran actually is my junior from engineering college. So we studied in SIS college, Nerul. And actually I call him Kumu. So hi Kumaran, how are you? I'm good. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार. So Kumaran, अपने बारे में बता like what you have done and what are you doing now? Okay, so it's a bit colorful what I have done. So as you said, I'm a computer engineer, Hmm. and then I did few jobs related to computer engineer, but then I switched my career into sports because that's my passion. So I switched and I pursued masters in sports management back in India, Mumbai University, se. And while pursuing that, I did few internships during that 2 years period. And once I completed, I flew to London for my second master's. Currently completing, almost on the verge of completing my master's, just waiting for the results. So I'm doing my master's in sports business and innovation Hmm. from Loughborough University, London. Yeah. Loughborough is one of the top 10 universities when it comes to sports related subjects uh, in the world as well as in UK. So it's really a good university to be, and I love the course. I really love the course. I learned a lot, and yep, that's short. Okay. So, मतलब, after 12th, did you decide that you have to do engineering, or was it a choice, or was it like, no, engineering is option है, so I have to go for it? Okay, so going back a long time, Yeah. but yeah, the thing is, मेरे को robotics में बहुत interest था. Robotics was something that I always wanted to do something about, Hmm. but then I took engineering just because sixth sem में Yeah. robotics करके एक subject है करके देखा था मैंने. That's the only reason I chose computer engineering. But then when engineering happened, Yeah. तब वो कोर्स में हमको आरजीबी का डिफरेंस समझा रहे थे, लिटरली कलर डिफरेंस एंड कलर आइडेंटिफिकेशन. Yeah. And that is nothing like computer vision is necessary for robotics, I understand, but the syllabus I felt it was way behind what was happening in the industry. And I clearly remember हम लोग को like first 3 years of engineering college there was nothing related to Python. एंड लास्ट सेमेस्टर में आके बोलते हैं कि पाइथन पढ़ो ये वो एंड हमारा प्रीवियस बैच उनको तो फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो गया था हाँ. पाइथन एंड एवरीथिंग एंड आई हाँ. वाज लाइक ये हमारे साथ क्यों नहीं हुआ. वी वर स्टडिंग द ओल्ड बुक सी प्लस Yeah. प्लस जावा, वो सब चाहिए फंडामेंटल्स के लिए चाहिए, बट देन यू ऑल्सो हैव टू बी ट्रेंड में जो इंडस्ट्री में जो चाहिए डिमांड में जो है वो भी तो वो स्किल्स इज इम्पोर्टेंट ना, जो विच आई फेल्ट आई लैक्ड. एंड उसके बाद स्लोली स्टेडीली इंटरेस्ट छूट गया Hmm. क्योंकि नहीं मिल रहा था प्लेटफॉर्म. एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वोजेक्ट्स कभी लेके बहुत थोड़ा अपना कॉलेज का तो पता ही है कैसा, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट था. Yeah. सो आई वाज एक्चुअली प्लानिंग लाइक इंटर क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट का मेरा था, Yeah. कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को मिक्स करके हम लोग मैंने एक रोबोटिक्स का प्लान बनाया था. Hmm. वो सक्सेसफुल हुआ, इट Okay. वाज सक्सेसफुल बट सपोर्टिव नहीं थे एट द स्टार्ट. Yeah. Until and unless they saw the working prototype they were not believing in my concept कि मैं क्या करना चाहता हूँ and all. तो एक टाइम के बाद वो frustration हो गया because I started my final year project when I was in third year itself. Hmm. So it was not a 6 month subject for me, like sorry, 3 month subject a semester for me. It was like one whole year I invested in the whole thing, Yeah. but still I was not, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया, लाइक नहीं भाई बस हो गया, नहीं करना है ये टेक्निकल बैकग्राउंड में. लेट्स Yeah. गो समथिंग विच आई एम पैशनेट अबाउट. पता Yeah. ही है बास्केटबॉल में कितना क्रेज था मेरा. तो लेट्स सी बास्केटबॉल कैसे इधर हूँ, पता नहीं कहाँ तक लेके जाने वाला बास्केटबॉल. लेट्स सी. हाँ मतलब मैंने I have seen you like playing basketball in college या and but at that time do you think कि क्योंकि back in 2015 I think 2015 या 2016 में हमने engineering पढ़ना start किया था and वो time पे कैसा था कि it was very basic. I mean like you said तूने एक expect किया था कि robotics के ऊपर you go in depth and learn about it, which is या happening now. Like या for nowadays, the kids, यस like abhi seventh, eighth के kids भी they are learning Python and लिट robotics. एग्जैक्टली Yeah, that's what. And एग्जैक्टली that's what we expected at in our time. And like
यूज्ड टू बी इन Yeah, स्पोर्ट्स, यूज्ड टू बी इन सोशल सर्विस, तूने काफी कुछ किया है, एनएसएस के थ्रू ही वी गॉट टू नो ईच अदर पहली बार। सो डू यू yeah. थिंक लाइक अगर अभी का जो पढ़ाई है वो मेरे टाइम पे होता तो मैं शायद स्पोर्ट्स में नहीं आता, या फिर व्हाट व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू थिंक कि अपने टाइम जो सिलेबस था दैट वाज वन रीजन जो तूने शिफ्ट किया? Yes, that is one of the reasons, and I feel there might be a very good chance that I would have pursued robotics much more with the given exposure आज के time पे जो है, because nowadays you don't even have to have knowledge about coding. There are so many AI tools, this and that, which will help you हाँ, to code. All you need to have is clear concepts. या, But वो time पे it's not just the concept. You have to be clear with your coach. You have to be clear with what you're delivering. It has to be successful. That's when you would be getting your marks or whatever that is. You will be evaluated on those lines. So I feel maybe that there would have been a very good chance, अगर वो टाइम पे, अगर आज का ट्रेंड जो है वो टाइम पे होता, शायद मैं बास्केटबॉल के लाइन पे ना आऊँ. मतलब वो चांस इट्स हाई, इट्स बिट हाई, because robotics was something that was in me since I was in school times, like literally from 8th standard. My first project, I still remember, I cried because I did not win that project competition. And it was very innovative. It was like basically, you remember we had boost में कार मिलता था, पता है, फ्री हाँ, का, फ्री भी, सो हाँ, छोटा वाला या, F1 का कार मिलता था रेड कलर का. तो या, मैंने क्या किया था, मैं रो रो के मम्मी से बोला कि मेरे को 2 बूस्ट का बॉटल लेके दो, और मेरे को अच्छा, 2 कार चाहिए थे. एंड अच्छा, माई कंसेप्ट वॉज वेरी सिंपल. और रोबोटिक शेफ मेरे को बनाना था. और मैंने क्या किया, एक कार को मूविंग के लिए यूज किया, और एक मैंने ऐसा स्टैंड वैंड बॉटल वॉटल रख के कुछ तो बना दिया, चश्मा वश्मा लगा दिया स्ट्रक्चर के लिए. और एक डंडी को चिपका के डंडी के एंड में मैंने दूसरा कार को मैंने तोड़ के सिर्फ मोटर लगा दिया. ठीक है. हाँ, तो एक से गाड़ी आगे पीछे, मतलब वो हाँ, मूवमेंट मिल गया. और दूसरे के वो जो मोटर है उसमें मैंने ब्लेड, थोड़ा बड़ा वाला ब्लेड लगा दिया. और क्या किया कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म रख दिया, तो हाँ, उधर जाता था और कट करता था. तो मैं तभी बीन्स रखा था, 3 बीन्स. तो बीन्स को ऐसा 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 करके कट करता था. तो इट वाज लाइक, फॉर अस इट वाज वे लॉन्ग बैक ना, हाँ, राइट. एंड वो टाइम पे मेरे को लगा कि इट वाज रियली इनोवेटिव दैट आई डिड, यू नो. सो आई वाज लाइक, यार दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू परस्यू, ऐसा करके मेरे माइंड में था. डू यू रिमेम्बर अपने टाइम पे वो एक बैटल होता था ऑटोबॉट्स का, जहाँ पे हाँ पता ना. हाँ, लाइक तूने देखा पता है है. वो? हाँ मैंने देखा है, और टीवी पे भी आता था. दैट वाज अ क्रेज, देखने के लिए हाँ, कि ऐसा नया नया चीज हो रहा है. एंड आई स्टिल रिमेम्बर 2015 जैसे मैं आया था, आई स्टिल हैव द ऑल द सॉफ्टवेयर दैट आई गॉट फ्रॉम अपना SIS में. हाँ, जैसे मैं आया था, FE इंडक्शन पीरियड में, मेरे को याद है फर्स्ट ईयर में वी हैड दिस ई यंत्रा. ई हाँ, यंत्रा हाँ, करके हाँ, अपना, हाँ, हाँ, अपना एक था ऑटोमेशन बॉट का, इन एसोसिएशन विद IIT बॉम्बे के साथ कुछ तो प्रोजेक्ट्स अपन कर रहे थे. क्या, एंड आई ट्राई टू बी इन्वॉल्व विद दैट भी, हाँ, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ शायद. मतलब वो सिर्फ पार्टनर थे, बट अपन ने उसके आगे कुछ कर नहीं पाए, मतलब वो प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पाए, समथिंग लाइक दैट. तो आई स्टिल रिमेम्बर वी मेड अ बॉट टू आइडेंटिफाई लाइब्रेरी बुक्स. तो मतलब आपको सिर्फ लाइब्रेरी कार्ड टाइप करना है, मतलब जो बुक चाहिए, और वो बॉट अपने आप वो लाइन फॉलो करके जाके बुक फाइंड करके लेके आके देगा. ऐसा समथिंग वी हैड प्लान्ड. सो तूने लाइक यू सेड टेक्निकल नहीं करना था बिकॉज वॉट एवर यू स्टडीड एंड देन यू शिफ्टेड टू स्पोर्ट्स, यप. बास्केटबॉल बेसिकली। सो या. वो शिफ्ट कैसा था तेरे लिए, लाइक घर पे, आई मीन दे न्यू दैट यू आर डूइंग इंजीनियरिंग बट देन व्हेन यू हाँ. सेड देम दैट तेरे को ये करना है, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? द थिंग इज, मेरा शिफ्ट इन द सेंस मेरा प्लान नहीं था हॉनेस्टली शिफ्ट का, हाँ, बिकॉज आई वॉज डूइंग वेल इन माई जॉब. एंड उसके बाद मेरा मास्टर्स का भी प्लान था जॉब के बाद. ठीक है. बट टू बी वेरी हॉनेस्ट एंड कैंडिड विद यू, मेरे को मास्टर्स इसलिए करना था वो टाइम पे, बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड बाय द इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट्स ऑफ US. ओके, एंड मेरे को ऐसा था कि भाई कुछ ना कुछ करके उधर टीम में घुस जाऊंगा. हाँ, एंड UCLA या फिर वो डिवीजन 1 बास्केटबॉल भी अगर खेल लिया है मैं, तो मेरे को काफी है, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर माय प्लेटफॉर्म ना बास्केटबॉल के लिए. आपको पता है हाउ हाँ, क्रेजी आई वाज. हाँ, तो इधर बहुत सारे मेरे को बास्केटबॉल खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था.
तो हम्म, लाइक यार नहीं बस हो गया। और वो टाइम पे ही तब वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि सब लोग निकलने लग रहे थे, मतलब बंच में ऐसा गुच्छे गुच्छे में जाना शुरू हुआ था। तो इट्स लाइक हाँ ठीक है, मास्टर्स कर ही लेते ना, क्या हो रहा है, चलो हाँ, मास्टर्स कर लेते, साइड बाय साइड बास्केटबॉल अपना कुछ ना कुछ उधर वो ट्रैक निकल जाएगा। बट देन कोरोना हैपेंड। yeah, देन जैसे ही कोरोना हुआ, देन जीआरई वीआरई सब कैंसिल होने लग गए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा 17 अप्रैल को मेरा जीआरई था एंड 24 मार्च को अपना ये था। हम्म, एंड वो जो 3 महीना था, आई लिटरली डिवोटेड माई सेल्फ अ लॉट इन दैट 3 मंथ्स पीरियड। एंड माई मॉम वॉज लाइक, तू अगर ट्वेल्थ में इतना पढ़ाई करता या फिर इंजीनियरिंग में ऐसा पढ़ाई करता तो स्टेट फर्स्ट आता। बोला हाँ अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम क्या आपको। She's like, नहीं नहीं नहीं, कर कर कर। बट देन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दिस कोरोना हैपेंड। देन yeah, आई वाज लाइक कि भाई अभी क्या करना है। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स लेट्स ट्राई टू फाइंड समथिंग, कुछ है क्या नहीं हाथ पैर मारने के लिए, क्योंकि मास्टर्स तो मेरे को दिख नहीं रहा था पॉसिबल है करके। देन ड्यूरिंग कोरोना पीरियड आई ट्राइड एंड आई गॉट इनटू वीडियो एनालिटिक्स क्राइम ब्रांच। एंड वो कर रहा था फॉर सम टाइम मुंबई पुलिस के लिए। बट देन वो जैसे ही किया, आई अंडरस्टूड इट इज रियली टैक्सिंग mentally. Even though I was good at it, since I had this photography background and stuff, I was doing video editing and all. I had a very good knowledge of softwares and computer engineering तो है ही है साथ में। So it is like for me, learning a software is very very easy हाँ, comparatively. I That's what I feel. Even if it is, if I'm really new to any software app, I think I can learn within 3 weeks. I can really be at least not a beginner, I would say at least a step above beginner, not intermediate as well. But हाँ मतलब बेसिक जो भी काम है उतना करने लग सकता हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर में, ऐसा मेरे को लगता था। हाँ, And that was true, and I showed my performance in that company and they were really impressed. So they were trying that app software to use for like 8 months or something. एंड जैसे मैं गया विद इन 2 वीक्स के अंदर आई मेड अ माइंड मैप ऑफ दैट ऐप। एंड आई वॉज एबल टू एटलीस्ट टेल देम कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स। एंड दे वर रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट। एंड आई लव द जॉब, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। बट द थिंग इज, वो टाइम पर थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन हो गया था, बिकॉज व्हेन द कोविड वाज पीकिंग आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस हाँ, अप्रोक्सीमेटली लाइक 3 to 4 days इन ए वीक। मेरे मैनेजर के साथ ही जाता था। सो आई वाज लाइक ओके। एक तो डर भी था क्योंकि वो कोरोना का टाइम ऐसे एकदम स्पाइक हो रहा था। एंड मैं ट्रैवल भी कर रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। बट देन आई वाज लाइक कि इज दिस व्हाट आई वांट टू डू 5 years डाउन द लाइन। आई वाज रियली गुड एट इट, बट आई वाज लाइक, मेरे मैनेजर भी बोल, मतलब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिजाइन फ्रॉम इट, आई वाज लाइक यू आर रियली गुड एट इट, yeah, व्हाई डू यू वांट टू क्विट। yeah, One thing I realized is it's not about how good at you are at something, it's about where your heart is. And I really want to follow my heart. And I was like कि एक try तो देना है। Then I took like literally 2 months of time. I contemplated कि क्या करना है क्या नहीं करना है। I put out all the options literally कि मेरे को मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मेरे को क्या क्या करना है। Like even I also took this what do you say, वाइल्ड लाइफ सिनेमाटोग्राफी अलग से एक मैंने रखा था। मास्टर्स इन जूलॉजी के लिए मैं सोच रहा था, बिकॉज वाइल्ड लाइफ के साथ है मेरा इंटरेस्ट। सो वो दो इंटरेस्ट रखा था। फिर मैं नॉर्मल एमबीए का एक रखा था। देन फिर सिर्फ सिनेमाटोग्राफी का एक रखा था। ऐसा ऐसा बहुत कुछ रखा था मैंने। ऐसा लाइक कि ठीक है। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, इतना सब कुछ ऑप्शंस है। देन आई टुक टाइम कि ओके, अभी अगर इनमें से अगर मेरे को एक ऑप्शन चूज करना है, क्या मैं 100% दे पाऊंगा। देन समथिंग अराउंड 9 ऑप्शन में से आई कट डाउन एंड फिल्टर करके 4 ऑप्शन में आया मैं। एंड वो 4 ऑप्शन में मैंने फिर चिट्ठी डाला, लेजिट मैंने चिट्ठी डाला एंड आई एम लाइक देखो भाई, ये 4 में से जो भी आएगा मैं उसके आगे मैं सोचने नहीं वाला हूँ। बिकॉज नहीं बस भाई ठीक, तो उसमें से एक था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एक था नॉर्मल एमबीए, एक था वाइल्ड लाइफ का जो मैं बोल रहा था, एंड एक था सिनेमाटोग्राफी। दीज आर द फोर लाइक लास्ट इसमें जो आए थे। एंड देन मैं जब ये टाइम में ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था मेरा, आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ माई पेरेंट्स कि क्योंकि वो लोग भी देख रहे थे कि मैं भी सुबह से शाम तक काम करके आ रहा हूँ। देन यू नो व्हेन यू सी ए वीडियो एंड ऑल, इट इज नॉट दैट गुड, यू नो यू आर नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। तो टैक्सिंग हो गया था एंड दे आर लाइक ठीक है ठीक है ठीक है। एंड मैं बोला फिर कि
this is what I'm interested in, this is what I'm trying, these are the four things. And एक चीज जो मैंने उनका श्योर किया है कि whatever comes up, there won't be any complaint again. Like again, मतलब in the sense, मेरे को थोड़ा इंजीनियरिंग से थोड़ा कंप्लेन हो गया था since I was not able to pursue robotics. Yeah. So I was like कि ये चार में से कुछ भी हो जाए, I will give my 100% and I will make sure that I will go some place in that stream करके. And luckily it came out sports management, and then the rest is a history now. So घर पे they were supportive with it, like Yes, they understood that it is a risk, हाँ but they were completely supportive. They wanted me because उनको पता है अगर I am a person like I'm an extremist, like एक तो 100% या फिर कुछ नहीं. I cannot be in the middle, like आधा अधूरा नहीं. रखना तो पूरा दिल से काम करो या फिर काम करो each month. So they knew that and they were really supportive, and they were okay with me taking this risk, and that's what really matters, you know. ओके तो मतलब चिट्ठी सिस्टम पे तूने करियर Yep. किया Yes, yes, एक्चुअली yes, एक्चुअली मेरे को yes. पता है लाइक यू आर गुड इन फोटोग्राफी टू एंड तो कॉलेज के टाइम पे अपार्ट फ्रॉम बास्केटबॉल यू यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल यू वर इन सोशल सर्विस एंड तो Yeah, फोटोग्राफी भी करता था एंड प्लस yeah, तेरा इंजीनियरिंग का भी चल रहा था तो yeah. वो पॉइंट कब आया जब तूने सोचा कि यार नहीं कि फोटोग्राफी स्पोर्ट्स एंड ये तीन है तो इसमें से क्या चूज करूँ like So, engineering के बाद because you said you worked in a company right but then mm-hmm. this was like your passion right तो तूने Yeah. how did that happen like तूने ये कब choose किया point So this came right after the bat because engineering जैसे ही खत्म किया था, हुआ ये था कि I got an offer from Indian Railways to join their basketball team, oh उनके practice session को. हाँ 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 But the only catch was since I do not have a railway job, हाँ हाँ I couldn't play. I could not officially play with them. But I oh used to practice with them. National team का जो इंडियन का नेशनल टीम है, हाँ उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था. हाँ तो हुआ ये था कि जब मेरा फर्स्ट जॉब जो लगा था, वो एग्जैक्टली ऐसा जगह पे था कि ये बिल्डिंग है हाँ और ये बिल्डिंग के सामने उनका प्रैक्टिस ग्राउंड है. वो भी oh इंडोर कोर्ट था. हाँ एंड जब भी मैं उतरता था एक स्टेशन में, आई यूज टू मीट अ प्लेयर. सो ही वाज इन रेलवे, ही वाज द टीसी हाँ कलेक्टर, बट एज वेल एज ही वाज द प्लेयर. हाँ एंड तो हमेशा मेरे को मिलता था जैसे ही स्टेशन में उतरता था. ही यूज टू बी लाइक, ब्रो आज आ रहे हैं क्या प्रैक्टिस के लिए? एंड मैं बोलता था नहीं ब्रो, आज ऑफिस में है. देन आई इवन ट्राइड आस्किंग माई मैनेजर कि मेरे को सिर्फ 2 घंटे का प्रैक्टिस टाइम मिलेगा क्या, मैं जाके आके आई एम इवन रेडी टू डू नाइट शिफ्ट. दैट्स हाउ क्रेजी आई वाज ना बास्केटबॉल के लिए बेसिकली. देन वो सब ऑफकोर्स पॉसिबल था नहीं, वो लोग नहीं किया. एट पॉइंट ऑफ टाइम ये हो गया था कि आई क्विकली रियलाइज्ड इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स की 9 to 5 इज नॉट माई कप ऑफ टी. बिकॉज आपको पता है मैं कॉलेज में कैसा था. नाइन हाँ टू फाइव एक जगह एक डेस्क, नहीं हो नहीं पाएगा. हो सकता नहीं मतलब वो एक टाइम के बाद कि मेरा ऐसा भी था कि मैं जहाँ बैठता था मेरे सामने वो बिल्डिंग दिख रहा है कि किधर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड एवरीडे मॉर्निंग वो बंदे को देखो. हाँ एंड ऐसा बहुत कुछ था वो टाइम पे. देन आई वाज लाइक, बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन जो भी था ना, नहीं खेल पाना. एंड बास्केटबॉल इज समथिंग लाइक वेयर आई फील माई इमोशंस, विद इट सैड हैप्पी वट एवर आई एम, दैट इज माई आउटलेट. हाँ वो मेरे को फॉर 3-4 मंथ्स में खेल नहीं पा रहा था क्योंकि इट वॉज वेरी टाइट शेड्यूल एंड हाँ एवरीथिंग. नहीं हुआ. देन आई वाज लाइक, भाई नहीं हो पाएगा. हाँ दिल से जो चाहिए दैट इज बास्केटबॉल, लेट्स गो फॉर इट. हाँ एंड वही टाइम पे, जस्ट टू हैव अ ब्रेक, हाँ वही टाइम पे जैसे ही मैंने कमाना शुरू किया, दैट टाइम हाँ आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन फोटोग्राफी. ओके So I bought my first gear camera, whatever that was, and then I used to go to trips during the job. तो बीच में जैसे अभी लॉन्ग हॉली अपना क्या बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड्स आता था, हाँ तब मैं थर्सडे निकलता था. हाँ फिर फ्राइडे मॉर्निंग नागपुर जाता था. फिर फ्राइडे दो सफारी, फ्राइडे एक सफारी, सैटरडे दो सफारी, संडे एक सफारी करके संडे नाइट निकल के मंडे मॉर्निंग आओ और मंडे मॉर्निंग जॉब शुरू करो. तो इससे कैसा है कि छुट्टी भी नहीं डालना पड़ता है. एंड मेरा ट्रिप भी शॉर्ट ट्रिप हो जाता था. तो दैट वाज माय ब्रेक पॉइंट. बट आई वाज लाइक कि ये ब्रेक पॉइंट कितना दिन ऐसे सस्टेन कर पाऊंगा ना. एंड क्विकली आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माय 9 to 5 नहीं जम रहा है मेरे को, एक जगह में नहीं रहना है. हाँ दैट्स व्हाट आई क्विकली लर्न. हम्म, एंड यप.
डू यू हैव दैट कैमरा विथ यू, लाइक तूने जो पहले पहले कैमरा लिया था? ऑफ कोर्स, ऑफ है कोर्स, तो ऑफ कसम कोर्स। के लिए लेके आया अभी? हाँ, सवाल। ओ ओके। कैमरा, लेंस, सब कुछ हाँ, लेके आया मैं, पूरा किट लेके आया था। सिर्फ तो अभी ट्राइपॉड नहीं लेके आ पाया क्योंकि ट्राइपॉड अलग से 4-5 किलो का है। तो अभी सोच रहा, अभी इस बार अगर कभी जाऊंगा इंडिया, इस बार लेके आऊंगा करके, ट्राइपॉड छोड़ के बाकी पूरा गियर इधर है मेरे पास। तो तू फोटोग्राफी करता है अभी भी? हाँ, करता हूँ। मतलब जाता है तू वहाँ वहाँ पे? जाता इन द सेंस, उतना मेरे को मौका नहीं मिला यहाँ के नेशनल पार्क जाने को क्योंकि टाइम बहुत हेक्टिक है, एंड आई एम फोकसिंग राइट नाउ टू एस्टेब्लिश माय फुट इन द इंडस्ट्री। ओके। तो बट जब आया था, नया नया इधर आया था, तब मैंने एक्सप्लोर किया था। मैं दिस इज माय सेकंड प्लेस दैट आई हैव शूटेड। फर्स्ट मैं दूसरी जगह पे था, एक स्टूडेंट अकोमोडेशन पे था, उसके बाजू में एक पार्क था। हम्म, तो वहाँ स्वॉन्स एंड छोटे बड़े बर्ड्स का फोटोग्राफी सब करता था मैं। एंड आई ऑल्सो डिड अ स्मॉल पेट फोटोग्राफी भी किया है एक जन के लिए, एंड ही लाइक्ड इट। सो हम्म, या। अच्छा ओके। तो जब तू यूके जाने का डिसीजन लिया, ठीक है, तो हाउ वाज द प्रोसेस? एंड ऑब्वियसली ये भी तूने घर पे बताया रहेगा, तो हाउ वाज देयर रिएक्शन टुवर्ड्स इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर वेरी हैप्पी हम्म, बिकॉज एक तो एडमिट मिल गया, एंड हम्म, द थिंग यूके, एंड ये प्लान हुआ ही नहीं था मेरा। ओके। ये मेरा बहुत, कैसे बोलूँ, आफ्टर इन 2021, हाँ। नहीं सॉरी, 2022 में मैंने प्लान किया था। हम्म, 2022 सॉरी 21 में मैंने प्लान किया था, अक्टूबर में। हाँ, हम्म, जब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स हो गया, क्योंकि 2 इयर्स का मास्टर्स था ना इंडिया में। जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, दैट्स हम्म, व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को एक स्टेप और करना है। ओके। क्योंकि जैसे मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, हम्म, आई हैड लाइक 2 इंटर्नशिप कर चुका था मैं, हम्म, इवन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। हाँ, वो भी साइट में जाके मैंने काम कर चुका था। एक हम्म, स्टार्टअप कंपनी के साथ किया था, एक असिस्टेंट मैनेजर जैसे किया था। हम्म, सो मेरे को जानना था, वो मेरे अंदर वो वापस वो रोबोटिक्स का जो कीड़ा था, लर्निंग का, वो इसमें आ गया था। सो आई वांटेड टू नो मोर कि अच्छा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। हम्म, ओके, नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट मेरे को और नेक्स्ट लेवल पे जाना था। एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट क्रिकेट फर्स्ट रैंक में आता है, देन हम्म, फुटबॉल, एंड बाकी सब एक क्लटर हो जाता है। हम्म, मेरे हिसाब से, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई फेल्ट कि उतना एक्सपोजर बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिल रहा है, हम्म, राइट। एंड एज सेड, बास्केटबॉल तो था ही मेरा, एक एनबीए करके था ही वो। तो आई वाज लाइक कि अगर इंडिया में रहूंगा तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी करके उतना ले। फिर भी हाथ मारता था मैं, जूनियर एनबीए, दिल्ली में जूनियर एनबीए का एक एकेडमी है, उधर के वुमेन्स कोच के साथ मैंने बात बात करके, टाई अप करके, वो सब भी बहुत कुछ किया था। हम्म, But still I felt that I need to get out of that space and learn the international standards, rules, how the management is done, वो सब। That's when I decided कि भाई ये करना है मास्टर्स करके। And जब when I was applying, honestly I did not think कि मिलेगा, क्योंकि it was a career switch ना, and हम्म, everybody was looking at like क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस ये वगैरह वगैरह। और मेरा तभी सीवी एकदम कलरफुल, हाँ, सॉफ्टवेयर, वीडियो एनालिटिक्स, यूएक्स यूआई, फिर अभी स्पोर्ट्स। मेरे को हाँ, लगता था भाई कोई भाव ही नहीं डालेगा, लोग सोचेंगे कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, एक ऐसे ऐसा करके निकल रहा है करके। लाइक नहीं, लेट्स लेट्स डू समथिंग। सो और मैं वो जो एजेंसी जो अपन ज्वाइन वाइन करते हैं, वैसे सब ज्वाइन किया था। तो वो लोग ने एक कवर लेटर लिख के भेजा। वो हम्म, लोग ने ऐसे कवर लेटर लिख के भेजा कि मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन करने वाला हूँ फिर से सॉफ्टवेयर में। मैं ओके। बोला भाई, मैं सॉफ्टवेयर, मैं स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तुम मेरे को सॉफ्टवेयर में क्यों धक्का दे रहे हो? हम्म, देन वन आई सैट दैट नाइट एंड आई रोट माई ओन कवर लेटर दैट डे, जो अपन भेजते हैं। और जब वो लिख रहा था, दैट टाइम आई रियलाइज कि व्हाट ऑल पोटेंशियल आई हैव, और मैं क्या क्या जानना चाहता हूँ। हम्म, एंड जब मैं लिखा ना, बिफोर इवन सेंडिंग टू द एजेंसी एंड द यूनिवर्सिटीज, मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, एंड दे आर लाइक इट कम्प्लीटली मेक सेंस। सो यहाँ ये लोग नया वर्ड बोलते हैं क्या, ट्रांसफरेबल स्किल्स, अपने को हाँ, इंडिया में ऐसे कुछ बताते भी नहीं है। तो वही टाइम पे मैंने वो ट्रांसफरेबल स्किल्स अप्लाई कर दिया था मेरे सीवी में। तो इट्स लाइक ओके, दिस इज व्हाट आई डिड, एंड दे आर हैप्पी विद इट। एंड हाँ, लव ब्रो, ऑफ कोर्स जब यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग सब कर रहे थे, इट वाज रैंकिंग टॉप में। हाँ, एंड आई क्लियरली रिमेम्बर, इनका एक वीडियो देखा था, इनका जो यूजुअल वीडियो होता है कॉलेज का प्रमोशनल वीडियो,
उसमें जो बंदी थी, शी डिड स्पोर्ट्स बिजनेस एंड इनोवेशन। ओके। एंड वो वीडियो देख के आई वाज लाइक, स्पोर्ट्स बिजनेस भी है, अच्छा ये अपना लाइन आ गया, इनोवेशन भी है, मतलब कुछ तो क्रिएटिविटी है, तो कुछ तो लिंक होने वाला है। देन आई वेंट डाउन फॉर द मॉड्यूल्स। जब मैं मॉड्यूल्स देख रहा था, तो सब मॉड्यूल्स जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किए थे, वैसे रिलेटेड कुछ कुछ मॉड्यूल्स थे, तो इट्स लाइक अच्छा, मतलब मेरे को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में सीखेंगे तो एटलीस्ट आई कैन रिलेट टू मैंने जो सीखा है 2 साल के इसमें से। उसके अलावा देर वेर समथिंग अराउंड 4 टॉप सब्जेक्ट्स विच वॉज न्यू टू मी, एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन वो 4 सब्जेक्ट्स में, लाइक कि भाई ठीक है, ये अच्छा मिल रहा है। एंड देन वेटिंग गेम शुरू हुआ, क्योंकि आई अप्लाइड टू लाइक 7 यूनिवर्सिटीज, एंड जब आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट जब आया तब छप्पर फाड़ के आ गया सब जगह से एक साथ, धड़ धड़ धड़, लाइक विद इन स्पैन ऑफ लाइक 3 वीक्स के अंदर मेरे को 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था मैंने, एंड विद इन 3 to 1 मंथ की गैप में 5 यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ गया, ओके। और 5 में से 3 यूनिवर्सिटीज में से स्कॉलरशिप भी मिल रहे थे। तो ओके। ऐसा ऐसा सब आ गया एक साथ, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये लोग ने क्या बेसिस मेरे को इसलिए सेलेक्ट सेलेक्ट किया किया। है। एंड थोड़ा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, क्योंकि हाँ। मैंने हॉनेस्टली सेइंग मेरा ऐसा प्लान था कि अगर नहीं हुआ तो मैं जॉब, और आई हैड आल्सो गिवन एन इंटरव्यू जस्ट हाँ। टू बी ऑन अ सेफर साइड। हाँ। मैंने हाँ। इंडिया में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, हाँ। एंड मेरे को सैलरी भी, पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा था, हाँ। एंड जॉब रोल तगड़ा था एकदम। हम्म, दैट वाज माय, ऐसा, अगर ये नहीं हुआ हाँ, आई दो विल तो। गो फॉर दैट करके। हाँ। एंड तो आई वाज फिंगर्स क्रॉस्ड, हाँ। और मैंने छोड़ दिया था 1 मिनट के लिए। देन जब ये सब आने लगा, देन आई वाज लाइक ओके, देन मैं घर पे बात किया, व्हाट डू यू थिंक करके, हम्म, एंड आई वाज सरप्राइज, दे डिड नॉट से सिंगल वर्ड, दे आर मोर देन हैप्पी, एंड दे आर लाइक कि गो फॉर इट। वो हाँ। लोग ने एक बार भी, मतलब दे डिड नॉट इवन डाउट, और हम लोग ने ये भी नहीं पता था कि हम लोग फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे, क्या कुछ सोचा ही नहीं हमने, हाँ। बट वी आर लाइक लेट्स गो फॉर इट। हम्म, बस उनका वो एक ही वर्ड चाहिए था मेरे को, एंड देन फिर अगेन बैंक लोन, एजुकेशन लोन, इसके लिए सब ढूंढो, ये करो वो करो, शुरू हुआ। ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट खेलो इंडिया ओह। में मेरे को काम मिल गया था। हम्म, सो खेलो इंडिया डिले हुआ था ड्यू टू कोविड, सो विद हाँ। इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स हम्म, मैंने 2 खेलो इंडिया गेम्स कर लिए थे। हाँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया था। हम्म, एंड देन वो टाइम पीरियड में ही मैं इवेंट करते करते, मैं बैंक का लोन का सैंक्शन करते करते, फिर एकोमोडेशन का करते करते, ट्यूशन फीस भरते भरते वो टाइम पास हो गया। और हाँ। जैसे खेलो इंडिया खत्म हुआ, मेरा फाइनल सेमेस्टर मास्टर्स का एग्जाम था, हम्म, एंड वन वन मंथ बाद लंदन आ गया। ठीक। जस्ट वेरी क्विक। हाँ, मतलब ठीक है, ये सब हुआ, बट तूने कहा कि स्कॉलरशिप भी था तेरे पास, वाज इट लाइक हाँ, 100% और लाइक नहीं, 10-20%। ओनली 20%? हाँ, तो तूने लोन लिया एंड देन यू हैव टू कम या, ओवर। यस एंड तेरे यस। पास ये माइंडसेट माइंड में था कि यूके ही आना है और कोई कंट्रीज का ऑप्शन नहीं है? नहीं, मैंने रिसर्च बहुत किया था, हाँ। मैंने रिसर्च सब जगह का किया था, हम्म, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का, आई फॉरगॉट द नेम, ड्यूक यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ड्यूक है। ओके। तो ड्यूक यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बिजनेस में बहुत बहुत नाम है उसका। हाँ। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, बट या, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने रिसर्च किया था। देन आई ऑल्सो रिसर्च फ्यू यूनिवर्सिटीज इन यूएस, हाँ। देन इन यूके। सो माई प्रायोरिटी वॉज नेवर यूके। जब मैं ओके। रिसर्च करता कर रहा था, तब मेरे को पता, जब मैं क्या करता था, आई यूज टू गो टू लिंक्डइन, आई यूज टू रीच आउट टू पीपल, आई यूज टू आस्क एलुमनाइज एज वेल एज द करंट स्टूडेंट्स हम्म, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। हम्म, एंड सिंस इट वाज फ्रेश कोविड टाइम ना, सो वो हम्म, टाइम पे एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग। हम्म, सो उस बेसिस में जब मैंने रिसर्च, आई फाउंड आउट कि यूके में हर टाइप का स्पोर्ट्स है, ओके। हाँ। लाइक फॉर एग्जांपल मोटर स्पोर्ट्स है, हाँ। F1 है, विंबलटन टेनिस हो गया, बास्केटबॉल है, फुटबॉल तो क्रेजी है। हाँ। तो एक स्पोर्ट में नहीं है, मतलब हाँ। इट इज नॉट, दिस कंट्री इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्पोर्ट। हाँ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि बहुत सारे जन बहुत सारे स्पोर्ट्स में आते हैं हम्म, सपोर्ट करने के लिए। हम्म, सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक। देन आई वाज लाइक कि यूके में करना है,
then I shortlisted universities in UK, and then I chose that, bro. तो हाँ, तो तूने कहा था कि यू हैव टेकन 20% स्कॉलरशिप एंड देन तूने लोन लिया था, राइट? एंड उसके बाद व्हेन यू केम हम्म। टू यूके फॉर द फर्स्ट टाइम, तूने एकोमोडेशन पहले ही सॉर्ट किया था या फिर यूके में आके तूने एकोमोडेशन? या सो या सो मैं इंडिया से ही मैंने इवेंट जब कर रहा था वहाँ से बुक किया था, बिकॉज यहाँ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे, नो फ्रेंड्स नो रिलेटिव्स. So when I was looking for accommodation, I found it a bit risky to book a flat or something until unless you go and view the flat, right? So इसके लिए मैंने student accommodation वहाँ से book कर लिया था, which was very nice and helpful for me. बट वो एक्सपेंसिव था ना स्टूडेंट एकोमोडेशन में? वो इधर आने के बाद मेरे को पता चला कि वो एक्सपेंसिव था करके, कि हाँ पता नॉलेज नहीं था ना उतना वो टाइम पे कि किससे हाँ. बात करे क्या करे. बट एक्सपेंसिव तो था, बट वो एजुकेशन लोन में कवर हो गया था क्योंकि वो भी कैलकुलेट करके मैंने ये किया था. ओके. देन आई रियलाइज कि हाँ थोड़ा चीपर ऑप्शंस भी थे करके. बट नो कंप्लेन्स फॉर द एकोमोडेशन ऑल्सो क्योंकि इट वॉज रियली गुड. एंड या अभी तो शेयरिंग में है या फिर हाउ? अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ, इट्स बीन लाइक 2-3 वीक्स. जैसे उधर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ 1 साल का, हाँ. देन इधर अभी शिफ्ट हुआ हूँ. अभी एक फ्लैट में शेयर कर रहा हूँ मैं. तो इज इट चीपर नाउ और इज इट इट स्टिल? इज चीपर, ऑफ कोर्स इट इज चीपर, या. ओके. तो कैसा था कॉलेज का इनिशियल डेज, लाइक व्हेन यू वेंट? तेरा एक एक्सपेक्टेशन हुआ रहेगा ना कि हाँ यूके जा रहा हूँ मैं, लाइक इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ. या. हाँ था थोड़ा एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, बट माइंड पहले से सेट किया हुआ था कि दूसरों पे कुछ ये नहीं करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, बी ऑन योर ओन. एंड जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा प्रेशर हो गया था मेरे पे, क्योंकि अभी भी है वो थोड़ा हल्का सा प्रेशर, बट आई थिंक इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्रेशर दैट आई एम हैविंग राइट नाउ. Because क्योंकि it was like way long time that I was doing something that I want to do, right? And वो टाइम पे जब तक मैं ये डिसीजन ले चुका था तब तक मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ में थे, दे हैड लाइक डबल प्रमोशन ट्रिपल प्रमोशन एंड क्या क्या लेवल पे पहुंच गए थे, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली इन वन, मतलब वो एक ही फील्ड में थे. तो ऑफ कोर्स उनका इट्स लाइक 3 years डाउन द लाइन दे हैव जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, एंड मेरे पास वैसे सब कुछ था भी नहीं ना. सो मेरा माइंड क्लियर था कि भाई इधर आते ही, एक तो कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं अपने. सो आई मेड माई माइंड क्लियर कि फ्रेंड्स तो किधर से भी बना लेंगे और अपने अच्छे फ्रेंड्स है इंडिया में. अभी फ्रेंड्स चाहिए उतना ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है. तो प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना वॉज वेरी की फॉर मी, एंड वो मैंने माइंड पे सेट कर लिया था कि जैसे आऊँगा आई विल मेक एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज मेनी नेटवर्क्स एज पॉसिबल, which will help me for a to land up in a proper job kind of thing. Yeah, even if not a job, at least opportunities के information मेरे को आना चाहिए कि भाई ये स्पोर्ट इधर हो रहा है. अभी इंडिया में कैसे है कि अभी इतने कॉन्टैक्ट्स बन गए वो 2 साल में कि अगर इंडिया में नेशनल गेम हो रहा है, या लाइक फॉर एग्जांपल अभी मोटो जीपी हो रहा है उधर, सबके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है कि भाई 1 महीने में ये हो रहा है ऐसा करके, मतलब इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाता है उधर. तो मेरे को वो चाहिए था इधर कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो आई आई नीड टू एस्टेब्लिश दैट काइंड ऑफ अ कांटेक्ट करके. तो ऑफ कोर्स उतना वो लेवल पे नहीं हुआ बिकॉज इंडिया इंडिया है और यूके यूके है. बट हाँ समवेयर अभी पता चल गया कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इधर करके, हल्का सा एक थोड़ा पर्सपेक्टिव आ गया है. एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट डिसीजन व्हेन आई वाज हियर, क्योंकि मैं जैसे ही आया, लाइक नॉट इवन किडिंग, लाइक लिटरली 3 days के अंदर अंदर जैसे ही अनपैक किया, आई revamped my LinkedIn, I revamped everything and started networking right off the bat. लाइक फर्स्ट डे से मैंने शुरू कर दिया था कि भाई क्या होता है यहाँ, क्या चल रहा है, मेरे को सीखना है, ये करना है, वो करना है करके. सो या. तो लाइक यूके में आके जब तूने स्टडी स्टार्ट किया, तेरा एक एक्सपेक्टेशन रहा होगा जैसा यू डिड फॉर द इंजीनियरिंग, यू हैड एन एक्सपेक्टेशन हाँ. फॉर रोबोटिक्स एंड यस. देन इट डिड नॉट वर्क आउट वेल. या. So how is it here now? Like, ऑसम. uh, ऑसम. इट सुपरसीडेड माय एक्सपेक्टेशन. mm, लाइक मेरे को लगा कि एक्सपेक्टेशन मैच हो जाएगा, मेरे को एक आइडिया था बिकॉज मैंने mm, एलुमनाई से बात किया था, रिव्यूज, तो uh, ऑफकोर्स वो तो था ही. बट mm, देन हॉनेस्टली देयर वेर 2-3 सब्जेक्ट जो मैंने बताया था जो इंडिया में नहीं था. yeah, एंड राइट नाउ I'm looking at my future job in those fields. mm, So mm, trust me when I say this, for me,
even though it is expensive, whatever the negatives are, it supersedes my academic background, because right now I feel जो मेरे को knowledge मिला है, it is the same kind of knowledge that I had for engineering basically. Like मैं जैसे बोल रहा कि सॉफ्टवेयर में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी कुछ चल रहा है, मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टू कैच अप इफ आई एम joining in any organization. Business, what kind of a business it is, what are the operations, how it is running, what is the financial background and financial budgeting that they have, like planning and everything. Projects कैसे चल रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन होते हैं, एंड इवेंट्स कैसे अरेंज ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, एवरी एस्पेक्ट का मेरे को एक गुड साउंड नॉलेज आ गया है. सो if I'm stepping into a company right now, I feel कि I can fit anywhere, and I also have an idea कि मेरे को कहाँ fit होना है करके. So I learned a lot, because in the thing is इंडिया में जो सीखा जाता है, it is like अपना इंजीनियरिंग जैसे बेसिक्स है, ठीक है, दिस इज गुड, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं है, खराब है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज दैट इज माई फंडामेंटल जो इंडिया में मैंने सीखा था. बट जब मैं इंटरनेशनल इधर आया, तब जाना कि अपन सीख तो रहे हैं, इट इज गेम का लेवल 1, एंड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो गेम लेवल 5 पे चल रहा है. एंड जो पढ़ाई है इंडिया में वो गेम लेवल 1 का सिखाते हैं, एंड इंडिया के इंडस्ट्री गेम लेवल 3 पे चल रहा है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम. पॉसिबल नहीं है ना. इसके लिए देर इज अ गैप ऑफ दो पेमेंट पेमेंट का जो भी वो थोड़ा गैप वैप आ रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है. एंड यहाँ वो लोग सिखा रहे गेम लेवल 5, और यहाँ का वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेम लेवल 7. उसमें कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट देर इज अ फेयर, आई फील कि तुम वो जो दो पड़ाव है तुम पार कर लेते हो. हाँ हाँ, वो हो जाता है. एंड जितने लोगों से मैंने बात की है, इंटरनेशनल हो गए या यहाँ के लोगों से जितना मैंने बात किया, दे आर what they have done is basic bachelor's in sports background, and right now they are doing a very good, they are in a very good position in an organization with an experience of 1 year or 2. बेसिकली इंडिया में जैसे लोग करते हैं अपने इंजीनियरिंग के बाद, सेम वही लेवल पे है. सो आई फेल्ट कि हाँ, कि है इधर वो स्टैंडर्ड का सिखाया जाता है, एंड यहाँ की जो सर्टिफिकेशन वर्क जो है एडिशनल, वो भी बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं इंडस्ट्री के लिए. सो दैट्स एन प्लस एड ऑन. एंड वन की थिंग दैट मेरे को यहाँ का अच्छा लगा इस, मेरे जो भी असाइनमेंट्स थे, everything had practical references that we had to make. So I did one thing for a company called 7 Leagues, which handles अपना वर्ल्ड रग्बी चैंपियनशिप का थोड़ा वो लोग का यहाँ वो लोग करते हैं मार्केटिंग एंड ऑल. तो उनके लिए हमारा असाइनमेंट जो था, 7 लीग्स के सीईओ आए थे खुद, and he explained us कि what he is expecting from us for a simple one assignment. जो इंडिया में वैसा नहीं था. इंडिया में था कि ये क्वेश्चन ये करो सबमिट करो. यहाँ वैसे तो था ही, एंड यहाँ एक और था वेस्ट हैम का, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा रिकग्निशन मिला. वेस्ट हैम का भी एक प्रोजेक्ट, वेस्ट हैम इज अ फुटबॉल टीम, और वो लोग का भी एक ऐसा था, एक प्रॉपर एक व्हाट यू से क्वेश्चन, जो हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बन के एक सब्जेक्ट था फॉर लाइक 1 मंथ के अंदर हमको सबमिट करना था. सो यहाँ प्रैक्टिकली जो करना हम लोग जो सीख रहे थे, एंड वी वर अप्लाइंग दैट प्रैक्टिकली इन आवर असाइनमेंट्स. सो दैट वाज अ ग्रेट प्लस. एंड इंडस्ट्री में भी वो लेके जाने के लिए बहुत आसानी पड़ जाती है, बिकॉज इवन इन इंडस्ट्री यू कैन से कि ड्यूरिंग द असाइनमेंट्स यू आर इन टच विद दिस कंपनीज, right? So which gives you a bit of a leverage, in that aspect. Okay. So what is the one thing, ऐसा कुछ था तेरे यूके में कभी बैड एक्सपीरियंस कुछ हुआ है, या फिर वन थिंग यू डू नॉट लाइक अबाउट यूके? Bad experience हाँ है. One thing that I don't like about UK is weather. वो तो सब जगह है। हाँ, लाइक यार इधर घंटों मतलब ऐसा क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब हाँ। एक क्लाइमेट रुकता नहीं है साला. एक दिन में 4 सीजन देख लेते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पहनना क्या है. बॉडी टेम्परेचर सेट नहीं होता, बॉडी को कंफ्यूज हो जाता है. अभी 2 दिन पहले बारिश में भीग के आ रहा हूँ, और अगला दिन इतना बारिश. भाई बॉडी कौन सा टेम्परेचर, मेरा बॉडी बोलते भाई तू कौन सा टेम्परेचर में सेट करूँ खुद को बता दो. एंड हाँ, वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा था कि अक्टूबर में आया था ना, तो विंटर प्रॉपर विंटर शुरू हो गया था अच्छे से.
तो वो हम्म, टाइम पे कि हाँ मतलब समझ रहा था कि विंटर कम कम होते, विंटर बढ़ रहा है, समझ गया था, तो हम्म, उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे ही अभी समर अमर आ रहा है, समर का नाम के लिए समर, कभी भी बारिश हो रहा है। परसों हाँ, के रात इधर थंडरस्टॉर्म, हाँ, समर खत्म हो गया, समर के बाद थंडरस्टॉर्म कहाँ से आता है? मतलब यार क्या चल रहा है? तो वन थिंग आई हेट अबाउट यूके इज वेदर, हाँ, एंड आई डोंट थिंक सो आई विल एवर लाइक इट। ठीक है, वो मेरा कंप्लेन रहा है फॉर पास्ट 9 मंथ्स नाउ। उसके अलावा बैड एक्सपीरियंस, हाँ देयर वर फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हुए, बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि गुड कितना है, वो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख सकते हैं। लाइक तो इन या टर्म्स ऑफ योर पर्सनल थिंग और तो कॉलेज के रिलेटेड हो गया। पर्सनल थिंग, कॉलेज में तो आई डोंट सी एनी बैड बैड एक्सपीरियंसेस एज सच। कॉलेज तो मेरे लिए बहुत हैपनिंग ही रहा है। ओके, तो बेसिकली मैंने वो 4 साल जो SIS में करता था, आई हाँ, रियली दैट सेम कुमू हियर इन लफब्रो, बिकॉज आई डिड ऑलमोस्ट समथिंग और द सिमिलर काइंड जो SIS में किया था, वही यहाँ भी आके वो सेम, यहाँ इन्वॉल्व होना, वहाँ इन्वॉल्व होना, ये करना वो करना, सब में घुस गया था मैं। लाइक दे आर गुड विथ वेलकमिंग इंटरनेशनल Yes, they are very warm. I love the fact that all the professors are very approachable. I love the स्टूडेंट। fact that even there are industry experts who are very approachable, that like they don't say that they are busy or something. They take out time for you. ओके, And especially my co-tutor, she is very sweet and she was very warm and supportive, and she had helped me a lot in that aspect, because मैंने उनसे क्लियर रखा था कि see, I don't have any contacts, I have no friends, and I want to do something in UK in this sports industry, and this is my performance, help me out. And she was like, yeah, okay. And she really helped me out. She had like when there were networking sessions, she used to introduce me to many industry experts, and which has helped me a lot. So yeah, basically I love it, I love it. सो तुम लोग की कॉलेज के टाइम इज देयर अ पार्ट टाइम थिंग दैट यू हैव टू डू लाइक अ जॉब काइंड ऑफ अ थिंग और इज इट लाइक हो जाता है It's मैनेज? not to do thing, it depends from person to person. There were few people who did not do because उनका finances strong थे, ओके, and there are few who are doing it just for sake, because they are like कि करना क्या है, क्योंकि कॉलेज तो जल्दी खत्म हो जाता है, एंड खाली फुकट का इंडिया से ट्रांसफर करने के लिए भी थोड़ा कर लेंगे तो डेली एक्सपेंस तो हाथ में आ ही जाता है, हाँ, तो उसके लिए भी लोग करते थे। एंड देयर वर फ्यू जिनको करना वाज लाइक हैव टू डू भी थे। सो ऑल थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से मैं मिला हूँ। ओके, बट तूने किया हुआ कोर्स के टाइम या फिर तूने? मैंने बहुत कुछ किया, जैसे मैं बोल रहा था, मैंने बहुत कुछ किया। ओके, तो हाँ, मैं भी एक टाइम के बाद आई वाज लाइक कि हाँ चलो कर लेते, बिकॉज वो टाइम पे क्रिसमस पीरियड था, क्रिसमस ब्रेक था। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम में बोला कि हाँ चलो क्रिसमस ब्रेक में शुरू करते हैं, तो मैं भी और पार्ट टाइम जॉब्स करने लग गया था। बट देन आई वाज लकी इनफ कि मेरे को ऐसा पार्ट टाइम जॉब मिला जो विच इज़ रिलेटेड टू माय फील्ड, हाँ, स्पोर्ट्स में कर रहा था। हाँ, एंड उसके बाद आई ऑल्सो डिड इंटर्नशिप्स, आई डिड मेनी वॉलंटियर वर्क। यहाँ वॉलंटियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं इधर। तुम अपना NSS का तो है ही बैकग्राउंड, तो हाँ, अपने को पता है कि कितना हाँ, मायने रखता है। सो इधर आके लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ के अंदर मैंने कुछ 4-5 वॉलंटियरिंग वर्क किए, विच बूस्टेड माई प्रोफाइल, एंड इट रियली हेल्प मी ऑल्सो। एंड वॉलंटियरिंग भी मैंने इन टर्म्स ऑफ लाइक मेरा जो लाइन है स्पोर्ट्स के लाइन में ही किया था। सो ओके, आई डिड वॉलंटियरिंग वर्क इन 3 मेजर मैराथन्स, ब्राइटन मैराथन, लंदन मैराथन जो अपना TCS ने इस बार कंडक्ट किया था, हाँ, और एक मैनचेस्टर आदिदास का मैराथन। So I was involved in these 3 marathons, and so you get an understanding of how the sports हाँ, industry works. It's not just about giving back to the community, but also learning how the event runs, what they are doing, why they are doing in the first place, and yeah, all those kind of sorts. so how difficult or how easy is it to get a job after you finish your course? Again, depends from person to person. फॉर मी, आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्टबन था मैं कि मैं और जॉब्स नहीं करूँगा, मेरे को सिर्फ स्पोर्ट्स में करना है, स्पोर्ट्स में करना है। बट वो नहीं हुआ, एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इट्स फाइन, इवेंचुअली आई विल गेट देयर। एंड आई स्टार्टेड विथ रेस्टोरेंट में काम करना, बट विद इन लाइक 1 मंथ के अंदर ही मेरे को ये अपॉर्चुनिटी क्लिक हो गया। उसके साथ पर साइड बाय साइड में वॉलंटियर मतलब ऐसा और जॉब्स भी करता था, जस्ट टू सफाइस। देयर वाज नो नीड फॉर इट, बट आई फेल्ट कि अगर वो करेंगे तो ये जो वीजा के लिए जो भी होता है आगे का
वो एक्सपेंस में थोड़ा सेविंग्स करेंगे तो यूजफुल पड़ेगा, अपने पे थोड़ा बर्डन कम हो जाए करके मैं वैसे सोचता था. सो honestly it all depends on how you communicate. हम्म, लाइक मैं तो 10 दुकान में जाके लिटरली जाके पूछता था, इज देयर एनी ओपनिंग, लेट मी नो. एंड कुछ लोग हाँ बोलते थे, कुछ लोग ना बोलते थे. सो हम्म, दैट्स ऑल्सो एन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. बट इंडीड भी पोर्टल्स है, देर आर मेनी पोर्टल्स, जॉब पोर्टल्स वेर यू कैन अप्लाई फॉर पार्ट टाइम जॉब्स. हम्म, एंड कॉन्टैक्ट रहे तो ऑफ कोर्स थोड़ा इजी हो जाता है. हाँ, एंड या, जॉब जो डिफिकल्ट है मैं बोलूँगा वो इट इज़ टू क्रैक इन द इंडस्ट्री. ओके, वो फुट रखना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर एक बार वो फुट रख दोगे फिर हाँ, उसके आगे थोड़ा आसान हो जाता है. मतलब एटलीस्ट पीपल नो यू कि हाँ भाई तूने कुछ तो किया है इधर हाँ, रिलेटेड टू योर फील्ड विच विल हेल्प यू इन हाँ, योर करियर नेक्स्ट जॉब जब अप्लाई हम्म, करते हो. एंड इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट पार्ट टाइम लाइक ऑड जॉब्स, आई थिंक इट इज फेयरली इजी बिकॉज एवरी ईयर there's this cycle happening, right? हाँ, So ये जो bunch of students आते हैं उनको जॉब लग जाते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं. हम्म, तो जो नए बन जाते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो वैकेंसी बन ही जाता है. एंड हम्म, अगेन द फेस्टिव सीजन्स एंड अगेन वो साइकिल तो चल रहा ही है. हम्म, तो आई विल नॉट से बहुत आसान है, आई विल हाँ, नॉट से बहुत डिफिकल्ट है. हम्म, इट अगेन ऐसे सेट पर्सन टू पर्सन से हो जाता है. okay. And UK में PR या सिटीजनशिप मिलना is it like easy thing or इज how इट long व्हाट? does it take? PR इट या इज, फिर हाँ PR इधर, या सिटीजनशिप? इधर का कैसा है कि यू हैव लाइक पीआर के लिए तो शायद आई थिंक इट इज 5 years आपको Okay. करना पड़ता है एंड एवरीथिंग. सो हम्म, बेसिकली यहाँ स्टूडेंट्स जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू गेट द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा. okay. हाँ, विच इज लाइक अ स्पॉन्सर्ड वीजा. ओके. बट it is not necessary that the company has to sponsor that. If हम्म, you have sufficient funds that you can gather हम्म, and you're applying for a company, you can apply for that. So after your student visa expires, or from when you apply for this post-study work visa, you can work for 2 years in okay. that visa, full हम्म, time, no restrictions. okay. After that, you need sponsors from the companies, Okay. which हम्म, will like then they will see your how you have been here, is there any criminal records, whatever all those क्रेडिट पॉइंट्स जो भी बोलते हैं वो सब देखते हैं. एंड इफ देर इज नो प्रॉब्लम देन यू कैन अप्लाई फॉर योर हम्म, पीआर. okay. या. So, what is the one thing that you would like to tell to the international students on about? क्योंकि काफी लोग, I mean, UK is an option right now that students are thinking, but या. पहले इसमें नहीं था. It was only like Canada, USA, ये options चलते रहता था. But या. what would you like to tell people, like students who are planning to come to UK? So for students who are planning, I would say do a thorough market research, Hmm. because right now there is this thing that like it is a scenario where UK is in crisis, economic crisis. Okay. मतलब थोड़ा है, मतलब इन्फ्लेशन है, ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज देयर. Hmm. बट आई फील स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा है बिकॉज Hmm. ईयरली minimum से minimum 2000 sports events happens in UK, Hmm. something or the other, right? So where is the funding coming from? Hmm. And there are n number of vacancies in there. So where is the money coming Okay. to make that event happen, Okay. right? Okay. So I feel sports industry में opportunities है. हाँ. But if you ask me about any other sector, Hmm. I might not be the best person to answer that. Okay. So market research is necessary. Hmm. Market research don't generalize. ऐसे हाँ. सेड अगर अभी कोई मेरे को बोलते हैं सब लोग मेरे को अभी भी बोलते हैं मैं सुन रहा हूँ कि यूके में जॉब नहीं मिल रहा है. हाँ नहीं हाँ, मिल रहा राइट. है, वो राइट. वो एक यूके माइंडसेट में है. रेसेशन, हाँ यूके में रेसेशन चल रहा है, यूके में हाँ. इकोनॉमिक, हाँ चल रहा है. बट इट हाँ. इज नॉट अफेक्टिंग द स्पोर्ट्स फील्ड ना. अगर ओके. एक बार आपको स्पोर्ट्स में जॉब लग गया, एक पोजीशन मिल गया तो आपको इट्स इजी फॉर यू. हाँ. थोड़ा डिफिकल्टी है, दैट इज तो कॉमन एवरी, किधर भी जाओ इंडिया में भी हाँ. जाओगे तो वही सेम सिनेरियो होने वाला है. हाँ. कांदा टमाटर का भाव बढ़ गया तो अपने को भी होता है प्रॉब्लम, राइट? तो वो सिनेरियो तो इट्स कॉमन फॉर ऑल रीजन आई फील. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प मी personally. That's what my suggestion is. And students from my background, like especially who are interested in sports, I would say कि थोड़ा difficult है, हाँ. but अगर कर लिया तो बहुत मजा है. हम्म. हाँ. So I would always say follow your heart,
It's Yeah. not about coming to UK, Canada, US, or Australia. Wherever you Uh, go because your heart says. That's one thing that I would keep, like, tell every single person. करना तो दिल से करो वरना करो ही मत. yeah. So Yeah. yeah, सबका वही है लाइक पैशन या फिर जो भी है जो हम yeah, फॉलो करना चाहते हैं. इफ यू आर रेडी टू बी कंसिस्टेंट फॉर दैट एंड मतलब तुम्हें करना ही सोच के कर रहे हो तो करो. हाँ, नहीं तो फिर ऐसा हाँ, नहीं कि इंडिया से बाहर जाना है ये सोच के माइंडसेट में आओगे तो हाँ, आई मीन इट वोंट हैपन. वो हाँ, सब. नहीं, आ तो जाओगे, बट देन हाँ. परफॉर्मेंस एक टाइम के बाद you will yourself will be frustrated with the output. There are many people who say don't merge your passion with your profession, but it's not the case. You can work around. So my हाँ. passion is playing basketball, but I can work around to link it with what if I get into NBA as a manager or something, right? I'm not a player, but at least I'm tied up with something that I love, right? That I'm passionate about. या. So that's there. तो या थैंक यू कुमो. थैंक यू No फॉर योर problem. It टाइम was टुडे. really awesome. It was really nice. Thank you for having me in your platform. Invite करने के लिए. So hopefully we'll have some chat soon again. Sure. I Definitely, mean I mean definitely. तूने मेरे को बोला था ये वीडियो करने से पहले we'll personally have a video call. वो मैंने किया नहीं. Sorry for It's that. okay. I can But understand. but Everybody are we'll do. busy, bro. So Yeah. there is no problem in that. We'll do that. And thank you Definitely. so much for today's time. No, And thank you for as sure well. we'll connect again soon. Thank you. Okay. Bye bye. So see you all in the next episode. Thank you guys.